How are you, my friend? Hi, I'm good. How are you? Can you hear me clearly? I can hear you. I can hear you. I can hear you very, very fine. Perfect, I had perfect. so many thoughts racing through my mind, and I'm going to bring up the picture of your book. First of all, thank you for Yes, coming back on the show, and you're congratulations on good. the name. Yes, you got it exactly. I just botched up the name. I had the second part down. I forgot the first name. Limitless is the word I was looking for. Yep. Congrats, you and another person who I have the fortune of knowing, who knows a lot of cricket, Sachin Bajaj. You have co-authored this book. How's the feedback been so far, my friend? Yeah, it's been good so far. We've heard from a couple of former players, and they've really liked it because one of the things that we try to do, Sachin and I came up with this idea, so to say. When we wrote the book on 1971, and during that book, what we realize is that you break it down into short stories rather than long chapters. So the 1971 book, I remember, people who don't quite aren't big cricket nuts, and they were like, "This is really easy to read." So the second idea was to go ahead with this book, but look back at 2007 and the victory and what it meant to Indian cricket, and we had started writing long chapters, and then Sachin is like, why not go the tried and tested way, which gave us good feedback during Twice Upon a Time, and make them into small chapters because it's easy to read. So if you actually have a look, we've got good big font, and the chapters are not more than 600, 700 pages, sorry, words. Yeah, and they're very easy to read. Uh, Small stories, small perspectives of all this, rather than making it really long. We just managed to keep it short. So that is, we are trying to make it easier even for people who aren't hardcore into reading cricket books. that's a good attempt because we've seen, especially with social media, निशाद बहुत लोग का क्या कहूँ मैं attention span शायद इतना ज़्यादा नहीं है, and I know the challenge of trying to even write an article keeping in mind Hmm. these restrictions, and here you and Sachin have gone and attempted a book again, so all the best for this, and I'm sure as soon as I get my hands on this I'm going to enjoy it as well. बात ये है कि भाई व्यूअर्स को तो मालूम ही होगा कि जिस टॉपिक जिस जीत को लेके निशाद और सचिन ने लिखा है, it's been 15 years and the Indian team has not managed to get their hands on this trophy again. Somewhere in this, a bit of food for thought कि ऐसा क्यों हो रहा है. Team has come close on several occasions, but there have been also some examples where they've not come close, and let's say the problems have been visible for everyone. What are your views on the 15 years of T20 cricket since this epic, unforgettable day at Johannesburg? जी देखिए, तभी तो आपको भी याद होगा, आई थिंक यू हैड जस्ट स्टार्टेड योर करियर बैक देन, तो मैं रिसर्च करते वक्त एक्चुअली मैंने आपके एक दो आर्टिकल्स भी पढ़े थे, अच्छा. तो हाँ, तो तो एक्चुअली अगर ऐसे देखा जाए तो तभी बड़ा एक सिंपल अप्रोच था, और हमने बात की थी जॉन ग्लॉस्टर से, लालचंद राजपूत से, और उन्होंने ये भी कहा था कि तभी एक हमने डिसाइड किया था कि हम जाके ना वील हैव फन, बट क्रिकेट विल बी सीरियस। तो इन अ सेंस कि वो फन फन का क्या एलिमेंट होता है कि हमें प्रेशर नहीं लेना है, मगर जब भी हम फील्ड पर होंगे तभी हमें सीरियसली खेलना है, हमें हमारा 100% देना है। तो एम एस धोनी हैड दैट अनकॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट एंड दैट वर्क। और ये बुक में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने क्या सही किया था, बिकॉज पाकिस्तान वो आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट T20 साइड्स इन दोस 2-3 years, क्योंकि 2009 ऑल्सो उन्होंने ही जीता था। तो हमने देखा कि वो दोनों टीमों ने एक अनकॉम्प्लिकेटेड अप्रोच रखा था, एक तो भारतीय टीम ने और पाकिस्तान टीम ने, दैट्स व्हाई दे वर द फर्स्ट टू चैंपियंस। दैट अनकॉम्प्लिकेटेड अप्रोच नीड्स टू कम इन, और वो अनकॉम्प्लिकेटेड अप्रोच ना जेमी हमें थोड़ा सा 2014 के T20 वर्ल्ड कप में देखा था, क्योंकि भारत फाइनल पहुंची थी और एक ही मैच हारी थी, जिस दिन एक दिन खराब दिन रहा उस दिन, बिल्कुल. मगर दैट अनकॉम्प्लिकेटेड दैट धोनी अप्रोच जो था वो हमें देखने मिला। नाउ फॉर सम रीजन वी नीड दैट बैक, सो दैट कि भारत एक वो ऐसे ही जाके फ्रीली खेले, जैसे कि उन्होंने जभी जभी अच्छा किया है, जभी जभी उन्होंने अच्छा किया। 2011 की भी अगर बात करें, इट वाज एन एक्सीलेंट टीम, दे प्लेड टू देयर स्ट्रेंथ्स। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें और आप उस पर ज्यादा ध्यान दें, और जो कुछ भी, जी हाँ, बिकॉज T20 क्रिकेट इवॉल्व सो फास्ट, T20 cricket that was played then is very different from now. So you need obvious, and I think it changes every 2-3 years. So you've got to be up to date with the times as well. I'm gonna come back to something you just touched upon, निशाद, और वो है कि 2011 की टीम और उस 2011 टीम को असेंबल करने में
कितनी मेहनत और कितनी प्लानिंग गई थी। आई थिंक प्लानिंग इज नाउ द मोस्ट कॉमन वर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं इन रिगार्ड्स टू इंडियाज फेल्ड कैंपेन एट लास्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप एज वेल एज दिस वन। पर वेरी ब्रीफली इट्स काइंड ऑफ ऐप ना कि जिस लेजेंड आपके बुक के कवर पे है उसी लेजेंड को लेके काफी कुछ दिनों में चर्चा हुई है कि ही माइट बी लिंक्ड इन सम वे to India's white ball team in the next 1 year. Your thoughts on that? Needed, perhaps overdue? See, he was there last year as well. And देखिए, Yeah. बट एक बात होती है ना कि एक महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम में होके और ग्राउंड में होके एक फर्क तो होगा, क्योंकि ग्राउंड पे वो विकेट कीपर होने के नाते ही कुड कंट्रोल ये होना है वो होना है, एंड ही इज वेरी मच इन द मिडिल एंड द थिक ऑफ थिंग्स। एक मेंटर होने के नाते एक अलग रोल होता है, बट द प्रेजेंस ऑफ कोर्स ना, क्योंकि आप देखिए कि अभी की जो कोई भी जनरेशन है, even for that matter, Virat Kohli, Rohit Sharma, they have always been inspired by MS Dhoni, Yep. क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से भारत को लीड किया था, कैसे अपनी खुद की क्रिकेट खेली थी, so that inspiration is there, that presence is there. मगर एक बात मैं कहूंगा कि MS धोनी brings in a lot of that calm, वो एक calmness आपको आना है, आपको वो दिखाना है, तो एक जरूर, और वो भी MS का तभी भी एक it was very evident कि John Gloucester gave me a very good quote, and that what he said, he was a physio. He said that MS one, he didn't feel the pressure, and even if he did, he didn't show it. So you're like a poker player. Even if you're feeling the pressure on his face, you're not seeing that. तो कई बार ऐसे भी होता है कि even if the opposition has done something and then they look at you, on your face, it should not be seen. So I think MS was also a master of those tactics rather than also just the cricketing tactics. So that presence, of course, will help, but how much will the Indian team be able to take it forward onto the field? That is the question. Yeah. Very, very valid point, because yes, it is MS Dhoni we're talking about, but वही है, can this team learn? इसी बात पे very, very briefly, viewers, आप लोग के लिए ये पहला पोल है। व्यूअर्स, आपके पास 20 सेकंड है, आप अपने लॉक स्क्रीन द्वारा इस पोल का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन इज, कैन MS Dhoni make a difference to the Indian cricket team? While you all cast your votes, I'll come back to Nishad. निशाद, वही बात है कि 2011 वर्ल्ड कप में you speak to players who are in that squad and on the fringes, they said कि MS Dhoni and Gary Kirsten sat down, और एक साल पहले 2011 वर्ल्ड कप से एक साल पहले धोनी told the coach and the selectors कि मुझे जो बंदे हमारे फाइनल 15 होंगे उन्हें 35 से 40 वनडे मैच लगातार खेलने पड़ेंगे, ताकि it comes down to momentum and they should feel that big match thing. It might seem to some like हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, बट नहीं, इंडियन क्रिकेट में किसी 15 प्लेयर को 35-40 मैच देना इज अ बिग थिंग, एंड श्योर इनफ इट्स बिकॉज धोनी हैड दैट कन्विक्शन एंड दैट प्लानिंग that team went on to win that World Cup. रही बात इस टीम की, 12 महीने पहले, I'll just come back to the views. 75% of our viewers have said absolutely Dhoni can make a presence. बिल्कुल, निशाद और मैं भी इसी बात से सहमत है, for exactly how you described it. But taking the Dhoni template of white ball cricket, at least when the team was damn good, 12 months ago under Virat Kohli, the team looked very good. Unfortunately, Pakistan से हारी टीम, New Zealand से हारी टीम, और फिर that was the end of their campaign. 12 months later, yes, I think the team was slightly better placed, despite not having a Jasprit Bumrah and a couple weak links. टीम पहुंची सेमीफाइनल तक, बट लाइक आई सेड बिफोर ऑन 2 shows, मैं इस बात से सरप्राइज नहीं हूं कि टीम हारी. द वे दैट टीम लॉस्ट, दैट टू मी सेज दैट दिस वाज अ विन फॉर इंग्लैंड, निशाद, achieved in the back room, because it was so clinical. But on the other hand, India's loss was down to familiar problems. Absolutely, and the way England actually closed the game out in the power play, वही बड़ी बात थी. बिल्कुल, दोनों पावर प्ले में एक तो दबाव बनाया भारत जब बल्लेबाजी कर रही थी, और फिर जब वो खुद बल्लेबाजी करने 60 रन तो उन्होंने पावर प्ले में मार दिए. गेम वहीं पे उनके हाथों में गया. और आप इंग्लैंड क्रिकेट की एवोल्यूशन देख लीजिए कि 2015 के बाद जिस तरह से उन्होंने पूरा बदलाव दिखाया है वनडे क्रिकेट में, और उसके कारण T20 क्रिकेट में हुआ. सी, T20 cricket also, I would say, under Morgan, they were still good. 2015, around 16 also, they reached the final. बिल्कुल. That game could have gone either ways. It was just that brilliance of Carlos Brathwaite in the last over that things actually, the title went to the West Indies. But you look at what England have managed to achieve. They have like-for-like replacements. तो वो कि अगर आपका कोई इंजर भी हो जाए, आपके पास और भी खिलाड़ी है जो आके आपके लिए एक रोल बना सके. एक मुझे होल जरूर नजर आया था कि
मार्क वुड, देखिए nobody likes to pace over 145 kilometers per hour. मार्क वुड इंजर हुए, क्रिस जॉर्डन आए, वो उतनी गति से नहीं डालते मगर तभी भी उन्होंने अपना रोल निभाया. So the England players were up for the challenge, and that was the thing. And they played to a template. And everyone talks about England cricket, and of course, Josh Butler has done a great job. Last year, I felt they were well placed to win the title, but you've also got to give credit to Matthew Mott. I think कि वो जो एक championship winning coach रहे हैं, and across the last 2 years, I mean in women's cricket also he did a brilliant job. तो ये आपने बिल्कुल सही कहा that they won the game in the back room, with that someone who knows how to win titles, getting that template, and more than getting that template, following the template. Because see, even India had the template. Correct. Power play they were going hard before the T20 World Cup. T20 World Cup में आके एन वक्त पर वो फिर momentum चला गया. We'll also come back to exactly what you said because I have strong views on this. Would it be fair then to say, like most people are in agreement, कि England का जो white ball game है, I mean they're the first team to be crowned one day champions and T20 champions. This is the best system going around, and there's a lot for other boards and other teams to learn from this setup. Absolutely, I think so. क्योंकि you look at the way they've been going about their white ball game. Although I still think that there is scope for Ben Stokes to come back into ODI cricket. Yeah, And I have my gut feeling is he will. My gut feeling is he will play the next World Cup. I just see that happening. Okay. Yeah. Because the champion player that he is. But look at the system. It's the system being there and being continuously the mindset that is continuously adhered to throughout. 2015 they realized they needed a change, made the change, and they've stuck by it. And they've got like for like captains as well. See, after Morgan, you've got Butler, and who follows a similar process. And Butler, I think, currently is the best white ball batter in the world, possibly. So he just picks bowlers for fun. So all of that, and you've got a team that has got enough all rounders. कि अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ 5 बॉलिंग के विकल्प है, आपके पास और भी गेंदबाज है, आपकी बल्लेबाजी भी आदिल रशीद तक बल्लेबाजी आप करते हैं. Rashid also has done well in, he may not be a T20 batter, but काबिलियत तो है कि वो he can stay out there in the middle. तो वो डेप्थ है उनके टीम में. तो इसीलिए मुझे लगता है एक सिस्टम जरूर उनका बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, कंसिस्टेंसी एक नजर आती है. बिल्कुल. And speaking of all-rounders, I'm going to put up a picture of the eventual man of the tournament here, Sam Curran. निशाद, बहुत लोग ये नहीं कह पाएंगे या would have had the chance to say कि Sam Curran would end up, being so successful because इनके पास ज्यादा गति नहीं है. But it's that experience, it's playing all these leagues. और Sam Curran ने फाइनल के बाद कहा था कि एक साल जो मैं CSK के लिए नहीं खेल पाया, I learned a lot. But he also gave credit to the IPL के MS धोनी के साथ खेल के, CSK के लिए खेल के कितना, how much I was able to adapt. We have seen that the BCCI, for very obvious reasons, do not send their players outside the BCCI because they want the exclusivity factor of the IPL. Is there, as improbable as this sounds, is there no room for them to send some players, maybe fringe players, maybe A-team players into other leagues? Because अभी समय आ गया, 15 साल हो गए जब से IPL आया है, इस टीम ने कभी भी T20 ट्रॉफी नहीं जीता. Is it time? Do you think it's feasible, possible for them to relax their rules a bit and send the fringe players to play? Because आप दोनों टीम देखिए निशाद जो फाइनल में आए, इंग्लैंड और पाकिस्तान, इनके कितने प्लेयर BBL खेलते हैं, CPL खेलते हैं, PSL खेलते हैं. At the end of the day, वो अनुभव जो आपको मिलता है अलग लीग्स खेल के, that surely can stand Indian cricketers in good stead. I think actually what may be one of the important things that we could see. देखिए, आप भारत की जो टेस्ट टीम है इतनी स्ट्रांग क्यों हुई? क्योंकि वो ए टीम का प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग था. बिल्कुल. इतने सारे आप जाके ए टीम्स जाके खेले. तो अभी मुझे लगता है कि आप एक थोड़ा बदलाव भी देख सकते हैं कि एक other than the one day matches that are played on A tours, you may start seeing more T20 matches being played. मुझे लगता है वो एक बदलाव होगा. That could be the way forward. क्योंकि देखिए लीग्स का भी एक क्लैश भी हो जाता है शेड्यूल के कारण कि यहाँ पे आप रणजी ट्रॉफी भी आप देखिए. रणजी ट्रॉफी इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया टेस्ट क्रिकेट. तो इसीलिए शायद वो रूल्स रिलैक्स होना वो शायद नहीं होंगे. मगर ए टीम का जो प्रोग्राम है मुझे लगता है वहां आप ज्यादा T20 क्रिकेट देख पाएंगे.
और वहां से जो है आपके लिए और वो फिर खिलाड़ी आते रहेंगे. सी इवन वनडे क्रिकेट यू सी श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ये सब इतनी ए क्रिकेट खेल के आ गए, लिस्ट ए क्रिकेट फॉर इंडिया ए एंड ऑल, कि वो तैयार होके आए थे. जो अनुभव उन्हें मिला था, तो मुझे लगता है वो ए टीम के प्रोग्राम में आप और T20s अगर रख दें तो शायद आपको वो और मौका मिल जाए कि आपको वो एक डेप्थ भी मिल जाए कि यू कैन प्ले देम इन इन डिफरेंट कंडीशंस. सो फॉर एग्जांपल आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अभी अगला वर्ल्ड कप जो है, अगला वर्ल्ड कप मुझे अभी भी याद है कि 2013 में जब भारत साउथ अफ्रीका जा रही थी, दे सेंट एन ए टीम इन ऑगस्ट. They did, And yeah. that had everyone. It had Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, all of them. I think only Virat Kohli was rested, but that whole generation was there. Virat Kohli, MS Dhoni stayed back. Pujara went on that tour. And a lot of these guys, at least Pujara and some of them actually did well. Rahane did well on the I think on the Shikhar tour. Dhawan got a 200 in one of the list A matches. 248. So now, अभी अगला टूर जो है, अगला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में, who knows, we may have India A team playing a T20 tournament there, T20 series over there. And another thing that England does, I mean, you're talking about leagues, मगर इंग्लैंड के आपने परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स देखे होंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में टीम जा रही है, परफॉर्मेंस टीम भी जाती है, एंड दे प्ले ऑल दीज मैचेस ऑन द साइड, ऑल फॉर्मेट्स. इंडिया में भी जब आते, बल्कि मेरे जो को ऑथर है सचिन, he has helped out these performance programs and even I have helped out Absolutely. them out. तो यहाँ बॉम्बे में आके वो लोग ऐसे मैचेस खेलते हैं, अलग अलग तरीके के मैचेस खेलते हैं, कभी वनडे खेलते हैं, T20 खेलते हैं. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ए टीम से आपका और एक क्या होगा ना, एक टीम बॉन्डिंग भी हो जाती है. सो इफ 4 guys from A team are picked and they go into the senior team, they seamlessly fit in and the team bonding is also there. So I think the A team program would be more key, I think. Yeah. Valid points, because you do need teams going and playing in those conditions जहां पे कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है. इसी बात को लेके सैम करंट लेके I'm going to put up another poll here for our viewers here दोस्तों. Was Sam Curran the deserving player of the tournament? आपके पास 20 सेकंड है दोस्तों अपने व्यूज कास्ट करने के लिए. Let's now get into briefly our group at the T20 World Cup. शायद बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि यार इनिशियली स्क्वाड देखे हमारा ग्रुप थोड़ा आसान वाला है, थोड़ा वो ग्रुप ऑफ डेथ टाइप हो चुका था because of the way Pakistan came back and then South Africa. If I can cast you back to your pre-World Cup predictions, how did you see, Nishad, the India group shaping up? Are you surprised that it was India and Pakistan in the final four? Had you backed South Africa perhaps? I had backed South Africa. I had backed South Africa through and through. और मैं आपको वजह बताता हूँ, क्योंकि पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप में आई वाज एक्चुअली ऑन द इवेंट साइड, और मैंने 2-3 साउथ अफ्रीका के मैचेस मैंने काम किया था. सो आई यूज्ड टू बी वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, यूज्ड टू वॉच देम, और साउथ अफ्रीका के टीम में एक दम नजर आ रहा था. मगर फिर क्या हुआ कि पिछले साल भाग्य ने फिर से उनका साथ नहीं दिया. 4 मैच वो जीते थे, बट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नेट रन रेट के कारण गए सेमीफाइनल में, एंड ऑस्ट्रेलिया इवेंचुअली वन. मगर इस बार मुझे लगा साउथ अफ्रीका ने सब कुछ किया था लीडिंग इनटू द टूर्नामेंट कि वो जीते. एक जरूर देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट टेम्बा बवूमा ही इंस्टेड वाज नॉट परफॉर्मिंग, मे बी अ रीजा हेंड्रिक्स कुड हैव प्लेड. सो वो एक जरूर एक एरिया था उनके लिए, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो फर्स्ट राउंड में निकल जाएंगे. एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जो मुझे लगा था साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान एक्चुअली जाएंगे थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड. आई वाजंट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द इंडियन टीम, क्योंकि मुझे पता था साउथ अफ्रीका और भारत का जो मैच पर्थ में होगा वो साउथ अफ्रीका वो द फेवरेट्स, और भारत और पाकिस्तान का जो पहला मैच था, आई थॉट दैट वुड बी एन इफेक्टिव वे व्हिच विल टेल अस हाउ द ग्रुप विल गो अहेड. So that I felt was one of the main things. I actually backed South Africa and Pakistan on form. So, but then that it didn't turn out that way. Pakistan, of course, luck favored them. I thought that they will have a much easier first round. मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसे स्थिति में होंगे, मगर मुझे लगा उनका और भी एक आसान जर्नी होगा. That didn't happen. But and also, so it was a little bit surprising, yes. A lot of our viewers are saying yes, they agree with you. दोस्तों आपके पास कुछ सवाल हो निशाद के लिए, he's just written a book called Limitless, The Paradigm Shift of 2007 and the 15 years since that on T20 cricket. You have any questions? You want to say hi? You want to rant also? Because we often do rant on the show कि यार टीम ने ये ऐसा किया था. तो निशाद ने कहा दोस्तों कि he actually was not so convinced. And I get where he's coming from. The Asia Cup really opened up the problems within this team. मैंने कहा था कि हाँ सिर्फ ग्रुप के हिसाब से looking at that more than any gut feeling, more than
दिल वाला फीलिंग वो आई जस्ट सेड आई हैड फुली एक्सपेक्टेड लोग नहीं मानेंगे आई हैड फुली एक्सपेक्टेड कि साउथ अफ्रीका वुड choke again. So Yes. on that Oh, basis, I said logically it will be Pakistan and India. But yes, on paper अगर देखा जाए फर्स्ट मैच को देख के कंडीशंस को देख के साउथ अफ्रीका हैव नो रीजन नॉट टू मेक इट बट आई सेड इट एंड आई सेड इट ऑन लाइव शो सो देयर इज रिकॉर्डिंग्स कि ये टीम को लेके मुझे शक है सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बट देन यू गेट देयर एंड देन यू हैव थ्री चलिए फाइनल थोड़ा क्लोज हो गया था बिकॉज ऑफ हाउ बेन स्टोक्स वाज स्ट्रगलिंग नसीम शाह ब्रॉट देम बैक बट यू हैड प्रीटी मच थ्री वन साइडेड मैचेस स्पेशली द सेमीफाइनल्स I go back to the point, and I'm sure whether you're talking on your shows, on whether you're anchoring, whether you're a guest, Nishad, you would have been very critical of India's sore points, and you would have been appreciative of the good points. मेरा ये मानना है, and I want to ask you कि 12 महीने when your two T20 World Cup campaigns are largely remembered for a 10-wicket loss to Pakistan in the first match and a 10-wicket loss to England in your आखिरी match. ये जो 12 महीने के बीच में जो हुआ does it really matter because you're playing bilaterals against some weaker teams you won some good series but क्या फायदा जब घुमा फिरा के अब वही मिस्टेक्स दोहराते हो निशाद और वही बात है ना कि आपने पावर प्ले में वो एक टेम्पलेट सेट किया था मगर इस वर्ल्ड कप में पावर प्ले में जो रन रेट था वो दैट वाज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल और मुझे लगता है एक समय पर कभी कभी जरूर कप्तान भी थोड़े he was not amongst the runs so that also creates a bit of pressure and you could see that Rohit ka also you could see he was trying to break free ऐसा नहीं कि he was trying to stay he was trying to break free but नहीं हो रहा है तो प्लेयर्स का वो कभी कभी फेज आता है बट with the whole template that was set through the year what was worrying was that it wasn't adhered to in the power play क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस आपने देखा न्यूजीलैंड पिछले साल भी वर्ल्ड कप फाइनल के 3 दिन बाद भारत और न्यूजीलैंड का सीरीज शुरू हुआ इस बार भी वही हो रहा है हालांकि इस बार न्यूजीलैंड में हो रहा है मगर तभी आपने देखा न्यूजीलैंड के सामने सीरीज हुआ फिर भारत में वेस्ट इंडीज आई थी श्रीलंका आई थी पावर प्ले में रन्स बन रहे थे आप इंग्लैंड चले गए पावर प्ले में रन्स बना रहे थे वेस्ट इंडीज में आप पावर प्ले में रन्स बना रहे थे एशिया कप में भी 1-2 मैच के अलावा आपने पावर प्ले में डोमिनेट किया तो क्यों नहीं आपने वही एक टेम्पलेट बना के जो रखा है वही फॉलो ढंग से T20 वर्ल्ड कप में हुआ भी नहीं वार्म अप मैच में भी आपने पावर प्ले में रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया के सामने तो वो सबसे मुझे लगता है वहीं पे जो है भारत पर दबाव बन गया और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि अगर जडेजा और बुमराह होते जरूर भारतीय टीम और मजबूत होती नो डाउट और they could have been a better performance but this power play thing that has to be really sorted out Absolutely. क्योंकि आप देख लीजिए 2007 की अगर हम बात करें और मैं बुक के रिसर्च करते वक्त आई वाज चेकिंग आउट वेरियस अदर इवन द पाकिस्तानी व्यू पॉइंट बिकॉज दे रीच द फाइनल आप देख लीजिए वो पूरे वर्ल्ड कप में भारत की जो ओपनिंग बैटिंग थी they played according to conditions. So Durban में जब सीमिंग हो रहा था that time गंभीर and सहवाग were like okay let's take our time. But जहां पे it was a batting surface both were going hammer and tongs. न्यूजीलैंड का मैच देख लीजिए इंग्लैंड का मैच देख लीजिए और फाइनल में भी इन्होंने बताया था यूसुफ पठान को जाओ और आप मारो his debut imagine debut and he's the only man in international cricket to make his debut in a World Cup final. और फिर आपने वो एक माइंडसेट रखा था कि आप जाके और पाकिस्तान के पास तभी भी देयर वाज वन गाय कॉल्ड इमरान नजीर who would have possibly won them the final also. He had scored 33 or 14 balls. तो तभी से लेके आप हिस्ट्री में देख लीजिए 90s के बाद 50 ओवर क्रिकेट में भी आप पावर प्ले में आप एक इम्पैक्ट करते हो तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के टूर के बाद बोल रहे हो भाई ये जो बोल रहे हो I cannot stress on this and I'm glad you've taken this much time to underline के पावर प्ले दोस्तों अगर आप इस शो पे जुड़े हो मैं तो ये कह के थक चुका हूं I'm glad someone else has taken this mantle पावर प्ले के अंदर टीम्स अक्सर इसी पे जीतती है देखिए आप अच्छी क्रिकेट खेले आपको 120 आप बना सकते हैं 14 ओवर में और जो दूसरे 6 ओवर या तो आखिरी 6 या पहले 6 इट कम्स डाउन टू निशाद द गेम ऑफ 5-6 ओवर्स एंड अनफॉर्चुनेटली they did not do पूरे 12 महीने हमने सुना रोहित द्वारा अग्रेशन एंड अनफॉर्चुनेटली शायद टीम को वहां जाके लगा कि यार यहां तो बॉल थोड़ी हिल रही है इट्स अ बिट अनसीजनल शावर मे बी इट्स टफ मोस्ट टीम्स डिड स्ट्रगल बट नो टीम स्ट्रगल एज मच और आंकड़े बताते हैं व्यूअर्स के नो टीम स्ट्रगल एज मच इन द पावर प्ले एज डिड आवर इंडियन टीम
इसी बात पे एक और पोल लगाता हूं मैं हमारे व्यूअर्स के लिए. Does India need a complete overhaul? While our viewers cast their votes in the next second for this poll, let's turn an eye to this series that starts in 2 days from now. बिल्कुल तुमने सही कहा निशाद कि एक साल पहले टीम हारी और उसी फाइनलिस्ट टीम से 3 दिन बाद हमने एक सीरीज खेला. यहाँ पे I'm gonna say it's a very low key series, but मेरा ये मानना है निशाद, प्लीज तुम अपना व्यू बताओ. This is the time to go back to the drawing board and start something new. Do not wait for next year. Do not wait. हाँ बहुत players को रेस्ट दिया है. आई एम फॉर दैट. पर यार बदलाव की सख्त जरूरत है स्टार्टिंग फ्राइडे एट द वेस्ट पैक स्टेडियम. और मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ द लाइक्स ऑफ ईशान किशन एंड ऑल एडजस्ट, क्योंकि मुझे लगता है वो एक एक्साइटिंग टैलेंट है. जी हाँ, हर एक प्लेयर में ना थोड़ी खामियां होती है और वो आपको एडजस्ट करना होता है. यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंग टू इट. सो ईशान किशन के लिए ये चैलेंज होगा कि न्यूजीलैंड में कैसे एक एडजस्ट करना है और अपना फ्री खेलने का जो अंदाज है मैं वो देखना चाहता हूँ. और आज आपके चैनल पर आपने जो पोस्ट किया था, जो हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था और उन्होंने यही एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ व्हाट MS धोनी हैड सेड इन 2007, लेट द गाइस कम इन, लेट देम एंजॉय द गेम. बिल्कुल निशान, एंजॉय करेंगे, ठीक है. लोग ये नहीं मानते कि लोगों को लगता है कि एंजॉय करना यानी कि कोई सीरियस नहीं है. नहीं, बल्कि आप जब एंजॉय करते हैं आप एक फोकस रहते हैं, क्योंकि फिर एफर्टलेसली आप जो है अपना काम करते हैं. अगर आप ज्यादा हाइपर फोकस हो जाते हैं ना तो फिर आप दबाव में आ जाते हैं. तो एंजॉयमेंट इज ऑल्सो अ वे ऑफ बीइंग सीरियस. तो मुझे यही भारतीय टीम से इस सीरीज में उम्मीद है कि वो कैसे करेंगे. और फिर दूसरे खिलाड़ी जिनको मैं देखना चाहता हूँ वो है उमरान मलिक. हमने देखा कि नसीम शाह क्या कर रहे हैं. नसीम शाह 145 प्लस. Butler was troubled. Stokes was troubled. You may be the best batter in the world. Nobody likes pace. 145 प्लस और फिर 145 के ऊपर जेमी आपको भी पता है, आपने इतनी क्रिकेट देखी. 145 के बाद when it becomes 146, 147, there's a massive difference. जितना डिफरेंस 138, 139 में है उससे ज्यादा डिफरेंस 145 और 146 में है. तो वो एक्स्ट्रा पेस मुझे देखना है कि वो कैसे गेंदबाजी करेंगे. और ये जो सीरीज है इट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट. इट्स अ लॉन्ग वे ऑफ, नो डाउट, मगर जो एक सीड जो है ना वो थोड़े आपको सो करने हैं ताकि जो है वो एक आपका पौधा बन जाए 2 साल बाद. एब्सोल्युटली. और यार निशाद, आई नो 2 साल कहाँ निकल जाते. कोविड को हो गए ना 2.5 years. Things do, but you have to start that process. Before I go forward, a lot of people have been saying, "Sir, हमें जवाब दे दो." हाँ, समीर, प्रवेश, hi guys, how are you? Rudra, good to see you. Shubham, a lot of regular viewers are back here. मनोज यदुवंशी ने काफी सवाल पूछे हैं. मैं आपका आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ. सीरीज शुरू हो रहा है भाई फ्राइडे को यानी कि 18 और 30 के बीच में हमारी टीम न्यूजीलैंड में 6 मैचेस खेलेगी. 12 दिन में 6 मैचेस, 3 T20 मैचेस, 3 वनडे मैचेस न्यूजीलैंड में, जहां पे मैं और निशाद मिले थे पहली बार. इट्स अ फैंटास्टिक कंट्री. इनफैक्ट आई थिंक इट वाज हैमिल्टन और नेपियर वेयर वी हैड दैट लॉन्ग टॉक. I would have loved to been there now as well. तो हाँ मनोज, सीरीज शुरू हो रहा है फ्राइडे को. You brought up the issue of Umran Malik. I'm going to put up a poll for our viewers here. Is it time to play Umran Malik? While our viewers cast their votes, मैं तो ये कह चुका हूं काफी शोज पे कि हाँ वो रॉ है. बट निशाद, तुम देख चुके हो, मैं देख चुके हो, व्यूअर्स देख चुका है, कितने सारे फास्ट बॉलर्स आए थे जो इंजरी के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण, whatever the reason was, they faded away before we saw what they could do. इससे पहले, I don't want to jinx this young guy, इससे पहले कि कहीं खुदा ना खास्ता ये भी उस ब्रैकेट में पहुंच जाए, इस बंदे को खिलाओ यार. We needed someone. You mentioned Mark Wood, Naseem Shah, even guys like Josh Little, they were rattling players. भुवनेश्वर, शामी, अर्शदीप, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, खासकर माय फेवरेट बॉलर दी अर्शदीप. पर आपको पेस जरूरत है. लाइक द कहावत गोस, पेस इज पेस यार. एब्सोल्युटली. और क्योंकि और अलग डिमेंशन आ जाता है आपके बॉलिंग अटैक में. शमी, भुवनेश्वर और अर्शदीप, सारे सबके स्किल्स अलग अलग है, दे आर डिफरेंट बॉलर्स, मगर एक पेस का जब डिमेंशन आता है तो बल्लेबाज भी सरप्राइज हो जाते हैं. तो इसीलिए आपने कई जो हम जब भी बचपन से भारतीय क्रिकेट देखते आ रहे, कोई भी एक तेज गेंदबाज आता है हम सब एक्साइट होते हैं. मुझे अभी भी याद है जब BRV सिंह आए थे, मुनाफ पटेल आए थे 2005-6 में, कितने एक्साइट हुए थे. मुनाफ पटेल हैड अ गुड इंटरनेशनल करियर, मगर उनका पेस इतना ड्रॉप हो गया था उसके बाद, तो वो बहुत एक वरिंग फैक्टर था.
एक खिलाड़ी जो कंसिस्टेंटली फास्ट है भारत के लिए, वो है उमेश यादव। उमेश यादव आज भी 140 प्लस डालते हैं टेस्ट मैचेस में। इज अ जेन्युइन फोर्स, और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारतीय पिचेस पर विकेट्स लेते हैं, वो इतने तेज गेंदबाज होकर। तो अभी देखना यह है कि आपको उमरान मलिक को कैसे मैनेज करना है, और उमरान मलिक को आपको एक अच्छा प्रोग्राम देकर आप उन्हें मैनेज कीजिए अच्छी तरह। और मुझे लगता है अभी भारत एक अच्छी स्थिति में ऐसे पेसर्स को मैनेज करने के लिए, बिकॉज इफ यू हैव बीन एबल टू मैनेज उमेश यादव फॉर 10 years, इवन इफ इट इज इन टेस्ट क्रिकेट, आई एम श्योर यू कैन फाइंड अ वे टू मैनेज उमरान मलिक। Let's hope, because he's a rare talent. I think he should have gone to Australia. Even if he didn't play, just having a bowler of that speed in your nets, it's like I said about Arshdeep Singh. उन्हें वर्ल्ड कप ले जाओ, उन्हें ना खिलाओ, but to have a left armer bowling to your main batsman in the nets day in day out, it's a big thing. Of course, Arshdeep played every match, and I thought he was fantastic. Oh, yeah. But you need someone. A couple questions that come, Nishad, about the captaincy. मेरा तो ये मानना है कि रोहित, given his age, given his injury prone, he was always going to be a stopgap captain, at least in T20Is. Is it time to change it? Not just because of, again, we failed to win a title, but Hardik Pandya has something, it's something is going with him. You've seen him from very, very close quarters. There's something about him which says to me कि यार बना दो कप्तान इनको यार. और हार्दिक, आपको एक बात याद रहेगी कि ही इज वेरी इंस्पायर्ड बाय एमएस। Yes. एमएस धोनी को बहुत क्रेडिट देते हैं, और हार्दिक की कप्तानी का अंदाज भी वैसा है कि वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं। और अभी कई बार जो है ना, इट्स कैप्टेंसी इज आल्सो अबाउट मोमेंटम। व्हेन यू आर इन दैट रन ऑफ डूइंग वेल, कैपिटलाइज ऑन दैट। एमएस हैड दैट रन। आई एम वंडरिंग वेदर रोहित का जो अच्छा गोल्डन captaincy period tha, maybe it coincided with Virat Kohli's time at the top, and Rohit used all that captaincy form to win MI those titles. And whenever he captained India in that time, उन्होंने एशिया कप जीता, निधास ट्रॉफी जीता। Sure. तो कभी कभी वो कप्तानी का वो एक शेल्फ लाइफ शायद होता है। मे बी रोहित का जो गोल्डन पीरियड था वो तभी था, हार्दिक का शायद अभी शुरू हो रहा है। और I must say that genuinely I've seen Hardik since actually he was 21, 22, and तब से एक बात जो मुझे उनकी स्ट्राइक होती है, जो सारे कप्तान जो कोई भी आप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, यू नीड टू बी अ जेन्युइनली केयरिंग इंडिविजुअल। आपको टीम का सक्सेस जरूर है, मगर आपको जेन्युइनली एक केयर करना चाहिए अपने टीममेट्स के लिए, और हार्दिक के लिए वो बहुत नेचुरल आता है। ही इज जेन्युइनली वेरी केयरिंग फॉर द पीपल अराउंड हिम। तो वो मुझे लगता है उनकी बहुत सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ होगी। मगर मूविंग अहेड, इट इज गोइंग टू बी ट्रिकी फॉर द नेक्स्ट 1 year, क्योंकि ज्यादा फोकस ना वनडे क्रिकेट पे होगा, 50 ओवर पे होगा। और अभी फिलहाल शिखर धवन कप्तानी करेंगे न्यूजीलैंड में, मगर अभी रोहित वापस आएंगे, फिर वो कप्तानी करेंगे, तो पूरा फोकस वनडे क्रिकेट पे होगा। T20 क्रिकेट मुझे लगता है अभी इट विल बी लाइक फाइन, इट्स जस्ट गोइंग ऑन। So a serious thought I think will only be given after 2023 World Cup. 2023 वर्ल्ड कप में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है फिर शायद एक कॉल लिया जाएगा कि रोहित क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैप्टनशिप एंड एवरीथिंग। और मुझे लगता है कि रोहित इज रियली डिटर्मिन्ड टू प्ले 2023 वर्ल्ड कप, एंड यू नो व्हाई? क्योंकि 2011 में ही मिस द बस, होम वर्ल्ड कप वो उनका सपना था। और आप कई बार जो रोहित जब बात करते हैं, आपको देख सकता है कि दैट इज वन थिंग ही ऑलवेज मिसेज। 2007 का ये वाला टूर्नामेंट उन्होंने जरूर जीता, मगर टू विन अ होम वर्ल्ड कप इज द ड्रीम ऑफ एवरी प्लेयर। तो मुझे लगता है कि शायद वो वही डिटर्मिनेशन लेके सोच रहे हैं अगले वर्ल्ड कप के बारे में। फिर शायद एक देयर विल बी अ कॉल टेकन ऑन T20 कैप्टेंसी। तो मुझे लगता है अभी T20 विल बी it's just going to be there, but it's the ODI cricket that will be in focus. It's a valid point. Just like sort of ODI sort of fell by the wayside in a T20I World Cup year. बात सही है, पर क्योंकि शायद not all of our viewers would be aware कि दोस्तों जो इंसान मेरे साथ जुड़े हैं, he is the media manager of IPL winners Gujarat Titans. Just if you can give something from your backroom interactions, something about what builds a championship winning team, and also just one thing about Hardik. You mentioned that he cares about people. It seems that he's even on the field, he's putting his arm over his shoulder. He seems to be even a bowler's captain. Is there one thing you remember which you're at liberty to talk about, Nishad, जहां पे लगा कि हाँ यार हार्दिक में वो बाकी में वो लीडरशिप क्वालिटी है? और डिटर्मिनेशन, क्योंकि जब वो आए थे, ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव। तो मुझे अभी भी याद है जब
वो कप्तान बने, थोड़े महीनों से क्रिकेट नहीं खेली थी, बट when he came he looked fit, he looked ready, और जिस प्रकार से he seamlessly eased into the role. मगर सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा, and it was my privilege, I would say this season was the greatest privilege of my life, मैं ये कहता हूं, क्योंकि इन्होंने जो एक सबके लिए एक हैप्पी यूनिट क्रिएट किया था. There was a lot of happiness, there was a lot of there was a lot of bonding, and it was not it was all very natural. They wanted people to come together, they shared everything, they looked after everyone. It all stemmed from him, our coaches and everything. And इनका भी वही था कि वो एक हंगर रहता है. मगर कई बार जो जेनी ये भी होता है ना, कभी कभी आप इतने हंगरी हो जाते हैं कि आप कुछ यू ओवर डू थिंग्स. बट अभी वो हंगर के साथ साथ ना, इनमें मुझे वो कामनेस नजर आई. तो वो जो एक कामनेस की, ठीक है, आई विल गो एंड गिव माई 100%. और MS धोनी एक बात किया करते थे, जेमी आपने और मैंने काफी क्रिकेट कवर किए 2015 के वर्ल्ड कप में. आपने जैसे कहा, हमने हैमिल्टन और ऑकलैंड के वो मैचेस कवर किए थे, और MS कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे, एंड वी यूज्ड टू थिंक it's a line that has been really beaten to death, but it makes sense. Focus on the process. वो बात कई बार हम इन द मीडिया वी वुड थिंक व्हाई आर दे सेइंग दिस, बट मुझे वो बात अभी बहुत I could see it very closely. When you focus on the process, you are focusing on the next ball. You are focusing on bowling the next ball. You're focusing on taking the catch. You're focusing on batting, and you're focusing on getting that run. So when that comes into the equation, आप वो दबाव को थोड़ा साइड में रखते हैं. आप पूरी तरह से तो नहीं रख पाते, मगर वो दबाव आपके वो पल में नहीं रहता है. मुझे लगता है हार्दिक ने वो सबसे बढ़िया एक बात दिखाई है इस साल. Yeah. Absolutely, it's true. It's true, very much true for but the IPL season he had, but also जो एक अलग एक character नजर आया whenever he captained India in those very brief moments. अगर आप आयरलैंड की बात कर रहे हैं as well as against South Africa, so let's hope, because he is after all the stand-in captain. इसी बात पे एक और पोल लगाता हूं मैं हमारे viewers के लिए. Should Hardik Pandya be India's next T20I captain? We've got only a couple more minutes. How do you see this series playing out, Nishad? Let's talk about the T20s, because right now we're getting into that. Rishabh Pant is vice captain. We've all wondered कि यार अगर ये आपके top four में नहीं है तो वो कहाँ खेलते हैं? Shubman Gill is a player who's surprisingly been given a chance in the T20I squad. He's not played this, but then you have Samson, you have Huda, you have Ishan Kishan, who's got 430 runs in this format this year. He's open, Pant's open, Samson's open, Shreyas open. How do you see the opening structure? I think the rest of the order will take care of itself. I think Chahal should play and Washington should play. But if you had to pick the two openers for at least Friday's first T20I, who would they be? That's a little tricky, isn't it? But I would say obviously Ishan Kishan has to open, and Rishabh Pant needs to play all the games from now on. आप ऋषभ पंत को वो एक कॉन्फिडेंस दीजिए, एंड lot of people may not agree, but I think Rishabh Pant can also be an opening option. Absolutely. He can do what Adam Gilchrist did for Australia. I think he's got the capability. He's got the there is a method to his madness. मुझे लगता है there is a method. कभी कभी ठीक है आउट हो जाते हैं, मगर वीरेंद्र सहवाग ने भी वैसे ही किया था. वीरेंद्र सहवाग ने इतने भारत को मैचेस जिताए. एक आध मैच में ठीक है आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये ऐसे क्यों आउट हुए, मगर there is a method to the madness. He can win you matches. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए जैसे मैचेस जिताए हैं, ऋषभ पंत जब चलते वो अपने आप मैचेस जिता देते. बट आपने ओपनिंग की बात कही, आई वांट टू आल्सो सी दीपक हुडा फिट इन समवे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ही वाज थ्रोन इन द डीप एंड. पर्थ में साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स को आप जाके खेलो, बहुत वो बहुत मुश्किल था. आई फेल्ट फॉर द गाय. इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज हार्ड ऑन हिम. आई मीन आप सोच लीजिए जेमी, हम तो कभी क्रिकेटर बन नहीं पाए, बट आप सोचते हैं कि भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलेंगे. इनका भी सपना था भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलेंगे, और पहला मैच आप खेलते हो साउथ अफ्रीका में, वो साउथ अफ्रीका के सामने वैसे पिच पर, और ही वांट्स टू प्ले हिज नेचुरल गेम. तो मुझे देखना है वो कैसे एडजस्ट करते हैं यहाँ. तो ईशान डेफिनेटली हैज टू ओपन. मुझे लगता है सेकंड चॉइस कैन बी, सी हुडा ओपनड इन आयरलैंड एज वेल. तो क्या आप हुडा को करवाएंगे और पंत को शायद आप रोल देंगे डाउन दी ऑर्डर, और सूर्या को क्या आप नंबर 3 पर लाएंगे? Surya Kumar Yadav will be your key for the next 2 years in one-day cricket. Absolutely. 50 over and T20.
I'm telling you, he's going to be the key even in 50 over cricket. Yeah, no, So, absolutely. He should. He will. Yes. yeah, वो अलग level batting करे. But again, when he's batting at 4, do you want to try him at 3 when whenever Virat Kohli comes back, he'll go back to number 4. So I think for this series, temptation रहेगा उन्हें 3 पे खिलाने हाँ, का. But जब विराट कोहली ने आके 3 पे करना है तो let him go on at 4. That is my view. Unfortunately, we've totally run out of time. कहाँ गए 40 मिनट 50 मिनट मुझे idea नहीं रहा. Thank you, Nishad, for taking our time. All the best to you thank you for so your book, much. Limitless, the paradigm shift of 2007. All the best to you and to Sachin. And I'm sure we'll get you back on this show at some point as well. 100%. So great to be here, and thank you for having me. And yeah, I must say, I love the photos in the background as always. Thank you. Yeah.